Is I have put Mhm. the little bit of NAT Mhm. destination NAT, Mhm. but there's certain things when you do from the Mhm. CLI and when you do Mhm. is what is central NAT, the nitty gritty part of it, the Mhm. captures and everything, and of course, Mhm. all the features like FSSO and stuff. Mhm. that you wo bas, Are they using FSSO? they might because it's They AD might. Okay. इंटीग्रेशन हाँ सब कुछ सर जी जो भी है तो LDAP radius हाँ हाँ and बिल्कुल बिल्कुल okay, बिल्कुल सर जी got it. Sure. Okay. लेकिन we'll start from the scratch और बस We'll आप जो start करें from the scratch. Yeah, जी सर जी definitely. जी We'll start from the scratch and we'll cover everything. Don't worry. Even the शुक्रिया CLI. Yeah, शुक्रिया सर जी no worries. So let me know once you can see my screen. नथिंग येट सर Okay, no worries. Please let me know now. हाँ अब आ गया Okay, Ji. So perfect. So we'll start with what is firewall. Although ओके everyone knows what is firewall these days, but जी जी let's just discuss it. Firewall term came into existence few years ago. Initially, I mean, in older days, we were having ACL. ACL were doing the job perfectly, right? ACL was there, which was there to block incoming and outgoing traffic on the basis of rules configured, right? Do जी you agree? जी But if you see in ACL, even in OnSys or any other vendor, you see ACL can block or allow the traffic, but does not know about the nature of the traffic, वेरी right? गुड Is that एग्रीड is the thing, right? And जी that's the only thing which organizations were concerned about. Because let us suppose I'm getting a ping or I'm getting a UDP or TCP traffic from certain sources. I'm blocking them. That is all good. I'm allowing some sources, but even though they are legitimate sources, but they might have some malware coming with the traffic, even through the correct sources, right? So those things ACL was unable to do because even if we are allowing through the ACL, but those traffic are having malware, antivirus, sorry, not antivirus, virus coming with the traffic. So it is harmful for the organization. So for that, initially there was multiple types of firewall, like if you know about packet filtering firewall. So packet filtering firewall just filtering the packet, content ओके filtering firewall just filtering the content type. ठीक ठीक है And ठीक yeah, there was different types of firewall. And the only thing, I mean, FortiGate, Palo Alto, and other vendors these days are working on because they are next generation firewalls. We'll discuss what exact difference between next generation firewall and older firewalls. Okay, ठीक ठीक but let me know if you just you can interrupt me anytime if जी there जी is anything you want me to ओके repeat. सर Okay, and थैंक यू सर जी if you want anything to speak in Hindi, if you are not comfortable, please update me that as well. I'll start in Hindi. Okay. थैंक यू सर जी थैंक यू Anji, Anji. Okay. So if you see these slides, these are self-explanatory, but just I made them just to show what exactly is ऑफ going. कोर्स So just a wall, firewall, a wall between private network of our organization and the public network. That's जी what firewall is doing, right? जी Although now these days firewall is also used between private to private network, ओके right? So it's not limited to private to public only. ठीक है So हाँ let's go to, please go हाँ ahead. like in our environment we have got a second tier of firewall Hmm. with the first tier of the firewall FortiGate was on the perimeter for Hmm. the internet and then we have got another set of firewalls downstream for the LAN SRXS we Right, have got हाँ right, ठीक है ठीक right. है Correct. That's what I'm saying. So absolutely. So if you see type of firewall, we already discussed. Packet firewall, it was earlier. I mean, in the initial days when firewall came into existence, it was just doing packet filtering. ठीक है Just type of packet, IP, port, just that. ठीक है Then stateful firewall came into existence. And just to let you know, next generation firewall like FortiGate is having all of these features, got it right? Yeah. So stateful firewall basically means, let me know if you can see my paint. Can you see my paint? eh, not yet Not yet. Let me share the screen again. So do you see my paint now? हाँ बिल्कुल आ गया
ओके जी। तो ये है हमारा FortiGate. Let us ठीक suppose this is FortiGate because we are doing Fortinet training. So I'll in terms instead of firewall मैं FortiGate बोलूंगा, है ना, ठीक है ठीक ताकि है हम स्पेसिफिक रहें। हाँ जी। तो ये हमारा FortiGate है and let us suppose this is our internet. So we are having a default route through FortiGate to our ISP. ओके Okay. And behind that we are having our LAN. This is our LAN. LAN is running on, let us suppose our internal subnet is 192.168.1.0/24. ठीक है जी। ओके जी तो ये है हमारा port 1 of FortiGate where LAN is connected. Port 2 where we are having ISP connected. Okay. ठीक है जी तो बेसिकली हम नेटिंग कहाँ करने वाले हैं? फायरवॉल पॉलिसी पे थ्रू पोर्ट 1 to 2. ठीक This है जी policy should be having that ठीक है because private addresses are never routable on internet. We have to do ठीक that, right? ठीक है बिल्कुल तो अब मान लो यहाँ पे हमारे पास दो होस्ट हैं, .1 .2. Okay. ओके .1 is going to 8.8.8.8, which is Google DNS, ठीक है जी and .2 is going to 8.8. Let's go to Cloudflare DNS 1.1.1.1. Okay. ओके Now firewall will make the state. State basically means if the traffic from 1.1 is going through one policy, let us suppose policy number 1. Okay. ओके Firewall does not require a reverse policy from ओके 2 to, I mean, opposite direction. So let ठीक us है जी suppose I'm having a policy LAN to WAN. Okay. जी And हमारा ट्रैफिक लैन का जो है, बिकॉज लैन हमारा ये लैन टू ठीक वैन गया, जी नेट हुआ, जी एंड इट वेंट टू इंटरनेट. ठीक है जी तो जब इंटरनेट से रिप्लाई आया, फायरवॉल विल कीप द स्टेट. ठीक है जी स्टेट कीप करने का मतलब वी नेवर नीड अ रिवर्स पॉलिसी टिल द टाइम आप यहाँ इंटरनेट से कहीं से ट्रैफिक इनिशिएट नहीं कर रहे, ओके गॉट इट राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स आई हैव सीन पीपल who are making reverse policies without, I mean, without a requirement, right? They think that reverse policy is required for that reply traffic. For reply traffic, on the stateful firewall, we never need a policy नोटेड because firewall will keep the track and will take the reply from the same policy from the packets have been sent. ठीक Okay? वन क्वेश्चन सर जी हाँ जी, हाँ जी. सर जी फायरवॉल तभी रिप्लाई करेगा अगर नेटिंग होगी कि इन एनी केस वो सपोज ए फ्रॉम इनसाइड टू डीएमजेड हम जाते हम्म, हैं हम्म, इनसाइड टू डीएमजेड के दरमियान तो नेटिंग नहीं लगी होती लेकिन हम इनसाइड टू डीएमजेड वाले सर्वर पे हम आरडीपी करते हैं सो यू डोंट नीड अ हम्म, रिप्लाई बैक राइट हम्म. You need a reply back. नहीं Always you need a reply back. उन्हें उसके लिए रिवर्स पॉलिसी चाहिए होगी कि नहीं नहीं चाहिए होगी. कैसे होगा? लेट मी टेल यू. इसमें इसी क्वेश्चन में आपको दो चीजें बताऊंगा मैं. आपने कहा इनसाइड टू डीएमजी में नेट नहीं चाहिए होगा. इसका भी रीजन आंसर है. You can need net even in the internal policy ठीक है sometimes, ओके and sometimes you cannot. It totally depends on how the things are, how the routing is done. So ओके मैं ठीक आपको है क्लियर करता हूँ, आपको अब क्लियर हो गए. So मान लो अब ये FortiGate है, दोनों पोर्ट इंटरनल है, इंटरनेट यहाँ पे कहीं भी नहीं है अभी पिक्चर में. ठीक है So this is our inside. ठीक Okay. है And this is our DMZ. ठीक है Okay. हम्म, So let us suppose our DMZ is on 192.168.2.0/24 subnet. ठीक है And this is on 192.168.1.0/24 subnet. ठीक So है अगर हम देखें तो ये दोनों different subnet है बिल्कुल because /24 and this is जी different. जी Last network is different. जी जी अब यहाँ पे no doubt एक switch भी होगा, right? ओके ठीक है Let us suppose यहाँ पे switch की जगह someone is having a router. ओके ठीक है And this router is acting as gateway. So ठीक है 2.1, let us suppose, is the gateway for all users on DMZ. ठीक है Okay. और FortiGate एंड राउटर के बीच में जो सबनेट चल रहा है वो मान लो आपका चल रहा है 192.168.3.1 is FortiGate IP ठीक है समझ and गया 3.2 is your router IP. Okay. ठीक है जी Simple है ना? जी जी जी
और इनसाइड में मान लो सिर्फ एक डम स्विच विच बीच में, देयर इज नथिंग इन बिटवीन, जस्ट अ डम Okay. स्विच, एंड FortiGate is acting as DSCP for this inside network. So And the default gateway as well. would be FortiGate definitely, ठीक है, because ठीक है. if FortiGate is providing DSCP, हाँ, that ठीक है, interface which is providing DSCP would be the gateway. ठीक है So जी, let us suppose हमारे पास ये inside interface है, that would be the gateway ठीक है जी, for this part. Okay जी. जी. अब इस सिनेरियो में let us suppose एक यूजर है 1.2 trying to ping 2.2. ओके. ओके जी. अब हम दो चीजें देख रहे थे. पहली चीज, हमारे दो क्वेश्चन है यहाँ पे. फर्स्ट, कि हमें रिवर्स पॉलिसी चाहिए कि नहीं चाहिए. डू वी नीड रिवर्स पॉलिसी. सेकंड, डू वी नीड नेट. ठीक है करेक्ट. जी, हम रिवर्स पॉलिसी वाले को पहले करते हैं, क्योंकि ठीक. अब मैं 1.2 से जब फायरवॉल पे यहाँ पे गया, जी, फायरवॉल पे व्हेन वी हम डीबग्स रन करेंगे तो फायरवॉल शो करेगा दैट ट्रैफिक रिसीव्ड ऑन इनसाइट. लेट अस ठीक है सपोज जी, दिस इज पोर्ट 1. ठीक है जी, ओके. जी. And then firewall, what will firewall do? It will do the route lookup. It will ठीक है do जी, the route lookup. And on the firewall, because हमारे यहाँ पे एक static route हमने डाला होगा इसके लिए, this would be हाँ, directly connected, जी जी, but this would be, let us suppose we are having a static route that हाँ. to ऑफ go to कोर्स, टू 2.0 रीच टू टू. हाँ, बिल्कुल and to बिल्कुल. our router, right? जी, बिल्कुल बिल्कुल. Or a firewall will do routing lookup. It check that I have a route through port DMZ to that ठीक है, particular subnet. ठीक Once है, the routing lookup will done, firewall will match the firewall policy. ठीक है जी, तो फायरवॉल मान लो पॉलिसी नंबर आपने 10 बना रखी है इंटरनल टू डीएमजी विदाउट नेट. लेट अस ठीक सपोज विदाउट नेट फॉर द टाइम बीइंग. ठीक है जी. तो पॉलिसी नंबर 10 फायरवॉल ने मैच किया, एंड फायरवॉल विल रिसीव द ट्रैफिक, मैच द राउट. हम्म. दिस इज द हायरार्की हाउ द हाँ, फायरवॉल ठीक है, मैच, राइट. बिल्कुल. एंड देन सेंड इट आउट थ्रू हियर. ओके. हम्म. लेट अस सपोज हर चीज सही है यहाँ पे, राउटिंग प्रॉपर है, राउटर पे भी राउटिंग है. इट रिसीव द पैकेट, डू द सेम थिंग, राउटिंग लुकअप, सेंड इट थ्रू हियर. हम्म. Now this host sends us a reply. ठीक है जी, This time our firewall is making the state table. It knows that there is some traffic going from 1.2 to 2.2, and this is an ICMP traffic. वाह. ओके, नोटेड. Already, if you see, there is a command, diagnose system session list on the FortiGate. If you see, it start making the sessions. Although it's not completed session, but it starts making a state of the traffic, right? And when it receive a reply, you don't need to create another policy. Policy number 10 itself will know that I can take the traffic back because it's just a reply traffic. Just a समझ गया. reply traffic. But there is a catch. If from here now you want to ping here, जी जी, then you cannot use policy 10. You need a policy from DMZ to हाँ, internal one. एब्सोल्युटली, You बिल्कुल got जी, it? तो बिल्कुल रिवर्स जी. पॉलिसी हमें तब चाहिए जब हम डेस्टिनेशन से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हैं. बट अगर ठीक वो है. सिर्फ रिप्लाई ट्रैफिक है, सिर्फ रिप्लाई ट्रैफिक हमारे सेंड किए ट्रैफिक का, then firewall will make the state and we never need a policy, reverse नोट policy. नोटेड. Yeah. And now let's go to the net part. जी जी, अब same scenario में, when the packet is going out to this DMZ, what source IP it is taking? If there is no 192.168.1. net, तो 192.168, हाँ, 1.2. 1. जी जी, Agree? 1.2. हमें 1.2 दे रहे हैं क्योंकि 1.1 मैंने FortiGate का गेटवे माना है. ठीक है जी. तो सेम आईपी जाएगी. अगर नेट नहीं है तो आईपी कहीं चेंज नहीं होगी, राइट? नहीं नहीं. It will go as same IP. Now let us suppose on our router somehow we don't have a route back. राउटर पे भी तो हमें राउट देना, स्टैटिक राउट्स. बिल्कुल. मैंने राउट दिया सिर्फ 3.0, वो तो कनेक्टेड है, राउट भी दिया, हाँ, इट्स ठीक है, डायरेक्टली ठीक है, कनेक्टेड. तो राउटर ठीक है, नोस हाउ टू गो बैक टू 3.1. ठीक है. बट उसके अलावा मैंने राउटर पे कोई भी राउट कॉन्फ़िगर नहीं किया. हाँ हाँ हाँ. डज द राउटर नो हाउ टू गो टू दिस सबनेट? नहीं. तो ये पैकेट रिक्वेस्ट आई यहाँ तक, it sees the source IPS 192.168.1.2. It sends a reply, came to router. Router does not have any entry for this subnet. It will drop the traffic. अच्छा, यानी इसका मतलब सर जी, जो पहला सेक्शन था, इससे पहले वाला जो रिवर्स वाला था, हाँ जी. रूटर के ऊपर एक स्टैटिक रूट लगा होगा टू गो टू 1 वाया 3.1. इधर करेक्ट, इधर हाँ. राउटर के ऊपर हमें राउट लगाना है. और एक और कैच है, वही जो हम बात कर रहे थे. हाँ यह जो हमारी पॉलिसी आईडी 10 है जी, उस पर हम नेट इनेबल करेंगे. वाह. ओके. जैसे ही हम उस पर नेट इनेबल करेंगे पॉलिसी 10 पे,
It will net भी काफी सारे फ्लेवर्स में आता है, we will discuss everything. ठीक But है। right now default flavor क्या है FortiGate पे net का? It will choose outgoing interface IP while the traffic is going out. जबरदस्त, समझ गया। है ना? तो जैसे ही हम ये करेंगे, नेट इनेबल किया तो वो किस इंटरफेस की आईपी चूज करेगा? 3 की। 3.1 की। और जब यहाँ पे ट्रैफिक जाएगा, ऑल द रिक्वेस्ट 1.2 से आ रही थी, जैसे यहाँ पे गई, यहाँ वो से 3 FortiGate ने बाहर भेजा, हाँ 3.1 करके भेज दिया। ठीक है। इसके पास गया, इससे 3.1 दिखा, इसने राउटर पे भेजा, राउटर knows this is my directly connected, right? Directly connected subnet. Router will give it a reply. Reply जबरदस्त। FortiGate पे है, FortiGate state मैनेज करता है, उसने उसको डीनेट किया 1.2 को और यहाँ रिप्लाई दे दिया। तो आपके पास, जबरदस्त। हाँ जी, तो आपके पास दो सॉल्यूशंस है उस चीज के लिए, इधर enable NAT on policy or check your routing ठीक है, in downstream device. समझ गया, Alright? समझ Clear? गया जी। Perfect. तो आपको ये क्लियर है कि इंटरनल टू इंटरनल भी we can require NAT sometimes, right? ठीक है, ठीक And है, internal to internal भी, if we are sending traffic and expecting a reply, we don't need a reverse policy. ठीक है, Perfect. So let's ठीक है go to जी। the next slide. तो अभी हम बात कर रहे थे स्टेटफुल फायरवॉल, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर आए एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल, जो कि लेयर 7 हेडर्स के अकॉर्डिंग काम करते थे, जस्ट ऑन हेडर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, हेडर, ठीक नॉट है, ऑल पेलोड। ओके, ओके जस्ट ओके हेडर्स पे काम ओके। कर रहे हैं। फिर आए प्रॉक्सी फायरवॉल, जिनका काम था सिर्फ प्रॉक्सी करना ट्रैफिक को, नथिंग एल्स। सो प्रॉक्सी कर देते, हमारी जो ओरिजिनल आईपीस थी उनको प्रॉक्सी करके एक आईपी में भेजते थे, and to safeguard our traffic, so that on internet everyone will see the proxy traffic and they cannot reach back to our original IPs, right? ठीक है जी। And then high UTM firewall. UTM basically means unified threat management, जैसे वेब फिल्टर, एप्लीकेशन फिल्टर, एंटीवायरस, ये सारे फीचर्स, राइट? तो ठीक कई है, फायरवॉल्स है जो सिर्फ ये फीचर्स देते थे। ठीक है, Then came into existence NGFW. NGFWs are the firewalls used nowadays. Next ठीक है, generation firewall. ठीक है, Next generation means they have all the features discussed in last slide, right? ठीक है, And then they have other capabilities which are discussed here. VPN services, we'll discuss that. IPsec, SSL VPN, and other VPNs on the FortiGate. ठीक है Packet जी। filtering is there. ठीक IPS है, IDS is there. IPS IDS is very important, right? क्योंकि ओके जी। IPS map intrusion prevention system, and IDS is just detection of that. ओके जी। And we'll discuss signature anomaly base. How does it work, right? ठीक है जी। And then most important thing of this NGFW is DPI, deep packet inspection. So deep packet inspection means now our inspection is not limited to only headers. All the payload of the traffic is also हाँ, matched with the known patterns, वाह। right? So we'll discuss about that. How does it do, and how does deep packet inspection works on the FortiGate? We just need a certificate on the policy, and we will enable deep packet inspection, and then FortiGate will decrypt all the traffic, send a new TLS connection to the next destination, right? There would be two TLS connection in case of deep packet inspection. अच्छा, Okay, we'll discuss ठीक है, everything. No worries. शुक्रिया। Let's go to the next one. So now FortiGate has all the capabilities of NGFW we discussed, right? And then it also provide integrated security features at one touch. What does it means? If you see, you must have seen the GUI of FortiGate, right? जी जी, जी जी। तो आपने देखा होगा उसमें there are all the security features, all the security fabric features, integrated integration features are available in GUI only. So हाँ, from there ओके, you can run all the features. Probably ठीक, for some you need license, but you can do everything through the FortiGate itself. You don't need अच्छा, a separate device ओके for all ओके, those features, right? जबरदस्त। Always. Yeah. Cost friendly, that is the most important aspect of FortiGate. If you compare FortiGate prices with other vendors, you will see that FortiGate is really cheap, ठीक है, right? In terms of price. Ease of management, if you see the GUI, although Palo Alto is really strong device, but if you check the GUI, you हाँ, will find FortiGate GUI really handy and easy. If you ओके, have checked the Palo Alto as well, because Palo हम्म, Alto gave all the features in GUI, which makes it complicated sometimes, right? ओके ओके ओके, And the product customer support is nice, and then there are some integration with the other easily integration with other
products of FortiGate, right? So let's ठीक go है, to the next one. This is what we are going to do. ठीक है, So this is our agenda. Maybe 1 or 2 days we will be behind. Maybe 1 or 2 days we can be forward to our agenda or ahead of our agenda. ठीक है, But this is what we are going to cover. Okay, just have a look जबरदस्त। on that. SSL VPN, वाह, सर्टिफिकेट जो Hmm. SSL नेट, सेंट्रल नेट, जबरदस्त हो गया। ये हो गया स्टैटिक रूटिंग पॉलिसी, OSPF Zetna has UTM, वाईफाई, HA, एक्सेलेंट, VLAN, DHCP, FortiGate, वाह, मजा आ गया सर जी। सर जी, VDOMs है इसके अंदर? VDOMs कुछ होगा, VDOM वगैरह के? नहीं, वो नहीं। VDOMs मैंने लिखा नहीं, but we'll cover that. Don't worry. शुक्रिया सर जी। हाँ, So if you लुक्स have फाइन। some, I mean, specific topics, that's fine. That's not like I am going to stick with this only. हाँ, We can change accordingly, नहीं नहीं right? सर जी, ये जबरदस्त है। एक वीडियो में और एक जोन्स के, हम जोन बनाते हैं इसके अंदर कि नहीं Zones बनाते? zones बनाते हैं. Zones is really simple. अभी मैं आपको start ही उससे करने वाला हूँ. If you see zones is there, right? ओ सॉरी चले, हाँ Yeah, ठीक है। no worries. So let's start जी, with our first class then, okay? ठीक है जी, And then without wasting time, I just want to show you FortiGate GUI and then start discussing the topics here, जबरदस्त okay? जबरदस्त। So give me 1 second. You don't see my screen, right? अभी नहीं। Okay, जी. सर जी, आप SRX पे काम करते हैं? SRX के ऊपर? SRX Juniper, right? जी जी। Uh, काम नहीं किया, but I know that. But I think concepts, once you learn हाँ this, हाँ हाँ, concepts are बिल्कुल same. Just the एग्जैक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही syntax कहते हैं। and how you are operating on the GUI हाँ is हाँ, different, right? Because बिल्कुल I worked बिल्कुल। on Palo Alto as well, so it's same, ओ, right? वेरी Yeah. गुड, ओके ओके। Just give me 1 minute, please. Then I'll share my screen because I'm just opening my FortiGate. Yeah. जी, Okay. I'll share the screen again. Let me know once you can see it. अभी नहीं सर जी। Okay. हाँ, आगे आगे आ रहा हाँ है जी, कुछ, अभी. हाँ, आगे Okay. आगे आगे। So this is our normal FortiGate GUI, right? जी, If you go on dashboard, you will see this information like host name, serial number, and all the things, uptime and everything, right? ठीक है, You will see licenses we are having 40 token by default. 40 token, we just have 240 token. But if you buy the license, you will get more 40 tokens. 40 tokens are basically used for multi-factor authentication. We'll discuss ओके, about that. ठीक है, And then FortiGate Cloud, so that you can have cloud access as well, where you can store your logs. And from the cloud, you can log in into the firewall as well. ठीक है। सर जी, Then हमारे उधर ऑफिस में ये 40 गेट भी लगा हुआ है, उसके साथ 40 मैनेजर भी लगा हुआ है, 40 एनालाइजर भी लगा हुआ है। हम 40 manager and 40 analyzer क्या होता है, we'll discuss about that, but ओके, we'll not go through that हाँ जी जी because जी, that's ऑफ a कोर्स separate ऑफ thing. कोर्स ऑफ कोर्स। Yeah. And then important things, your CPU utilization, you can change to sometimes, because if you are managing FortiGate, it is required that you have to look through those all things. So you can change to 24 hours and you can check what is CPU utilization, what is memory utilization in 24 hours. Is our FortiGate going in normal? Because if you see my FortiGate, it's constantly on 69. So this जी, is normal for my FortiGate, but let us suppose someone is using a FortiGate and they are on just 25% and suddenly they go to 70%, right? Then this is something concerning, right? So if you see sessions, how many session we are having, and turbo session, SPU session. So there are multiple processors in FortiGate. It totally depends on device to device, right? ओके, So even for IPsec traffic, let us suppose we are having IPsec traffic. FortiGate usually offloads the traffic from the CPU to NPU ओह, because if you are using CPU only, then definitely your CPU will be used, right, for all the traffic, ठीक है, and it will increase the CPU. ओके। So FortiGate by default offloads the traffic to NPU for the IPsec. So तो this is the नेटवर्क first. प्रोसेसिंग यूनिट सर जी, NPU है ना? Correct, ओके correct, correct. ओके, Also, this is a CLI command in case if someone
if you are managing anything and suddenly FortiGate have high memory or anything, so you can use this. सर गेट और शो में क्या फर्क है सर जी इसमें? और फिर वो एक बंदा कमांड टाइप कर रहा था, वो नेक्स्ट नेक्स्ट करता था ना, तो फिर Mhm. कमांड चलती नहीं थी, वो भी बड़ी कंफ्यूजन लगती थी मुझे। नेक्स्ट क्यों Next, टाइप नेक्स्ट क्यों टाइप करते हैं कमांड के अंदर? next तब टाइप करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। config firewall policy, ओके, जी लेट अस सपोज एडिट क्वेश्चन मार्क। मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे पास तो इतनी सारी पॉलिसीज हैं इस टाइम, 13 23 सब, राइट। जी जी इफ आई वांट टू सी 13, आई गो टू एडिट 13, जी। शो, ओके, मैं शो में चला गया। अच्छा अब मेरे पास दो चॉइस हैं, या तो मैं नेक्स्ट करके इससे थोड़ा बाहर आऊं, फिर एडिट 14 देख के 14 भी देख लूं, अच्छा। राइट। अभी हम मेरे पास 14 नहीं थी तो इसलिए ऐड होगी ऑटोमेटिकली, बट दैट्स अ चॉइस। सो समटाइम्स पीपल डू नेक्स्ट टू रेदर देन गोइंग पूरा बाहर जाने की बजाय फ्रॉम द योर कंसोल, बिकॉज अगर आप एंड दबा दोगे डायरेक्ट तो आप पूरा ही कंसोल से बाहर चल जाओगे। लाइक आई विल शो यू वन मोर टाइम। कॉन्फिग फायरवॉल पॉलिसी, एडिट 13 आई एम हैविंग अ 13 पॉलिसी, मैंने देखा, अब मैंने एंड दबा दिया। जैसे ही मैंने एंड दबाया मैं पूरा बाहर चला गया पॉलिसीज के सेक्शन से भी। अगर मुझे पॉलिसी नंबर 14 देखना है तो मुझे दोबारा ये कमांड रन करनी पड़ेगी, कॉन्फिग फायरवॉल पॉलिसी, एडिट 14, एंड नाउ कैन आई कैन सी कि पॉलिसी 14 में क्या है। ठीक है जी। बट नेक्स्ट कब यूज करेंगे हम? जब हमें मल्टीपल चीज देखनी है सेम कॉन्फ़िगरेशन की। सो कॉन्फिग अच्छा, फायरवॉल पॉलिसी, ये ना हम एडिट, उसी की हायरार्की में रहेंगे। फायरवॉल राइट, अच्छा अच्छा राइट। अच्छा सो अच्छा। एडिट 13, शो। अब मेरे को देखना है 23 भी, तो मैं नेक्स्ट दबाऊंगा सो दैट मैं इससे बाहर ना निकलूं। मैं फायरवॉल पॉलिसी में अभी भी हूं, आप देखोगे यहाँ पे, देख रहे हो हाँ, पॉलिसी सेक्शन में। इसका मतलब आप वन लेवल हो जाओगे बस, इन समरी। बस अब आप शो कर सकते हो, लेकिन अगर मैं एंड दबा दूंगा मैं इस सेक्शन से ही बाहर चला गया, आई एम ऑन द बिगिनिंग ऑफ CLI, जहां पे मैं सारी कमांड्स रन कर सकता हूँ। तो ये नेक्स्ट एंड एंड में डिफरेंस है, राइट। तो इसलिए नेक्स्ट यूज करते रहे लोग, मल्टीपल चीज उसी कॉन्फ़िगरेशन की देखने के लिए। अगर आपके पास मल्टीपल एंट्रीज हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन की, हाँ लेट अस सपोज आपने बीजीपी है, बीजीपी में कुछ प्रीफिक्स डाली है, तो आप मल्टीपल प्रीफिक्स देखना चाहते हो, मल्टीपल नेबर्स देखना चाहते हो, लेकिन रहना बीजीपी के कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में ही चाहते हो, तब आप नेक्स्ट 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 यूज करके चेक करोगे उसे। अगर आपको ओके बाहर आना है पूरा, देन यू टाइप एंड, ओके। ओके जी, वेरी गुड। हाँ जी, ये है इसके बारे में। एंड रिगार्डिंग योर शो, तो गेट कमांड्स, शो कमांड्स बेसिकली आपको, मतलब it's just GUI. Like if I do show system interface, it will show like this, right? And अच्छा if I do get system status is not there for, I think, this one, but let me try. नहीं, इसके लिए नहीं, बट देर आर सम कमांड्स जिसके लिए आप गेट भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। जैसे ये config system DNS, राइट। हम्म। ये मैं गया शो कर रहा हूं मैं, तो ये दिख रहा है। गेट कर रहा हूं तो ये दिख रहा है। सिर्फ आपका दिखने का तरीका इस तरीके से, गेट में आपको इस तरीके से दिखेगा अच्छे से सब कुछ। ऑल्दो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो में भी दिख जाएगा, देखो शो में ये दिख रहा है, गेट में ये दिख रहा है। जस्ट ये डिफरेंस है, देर इज नथिंग लाइक कि आपको गेट करना है शो करना, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको सारा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, मान लो देखो शो में आपको प्राइमरी सर्वर, सेकेंडरी सर्वर, प्रोटोकॉल आप क्या यूज कर रहे हो वो दिख रहा है, बट आप जी देखना चाहते हो कि SSL सर्टिफिकेट में क्या यूज कर रहा हूँ, राइट। तो आप गेट कर लो। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो उससे भी इजी तरीका है, शो फुल ग्रेप सर्ट। अगर आप ये करोगे, शो फुल मतलब DNS में जितनी भी चीजें हैं सारी FortiGate की दिखाओ। grep मींस उस चीज को होल्ड कर रहे हैं। grep कमांड इज लिनक्स कमांड, राइट। वी आर ओके। जस्ट picking that command, like in Cisco we use I include, right? जी It's जी like बिल्कुल that. बिल्कुल बिल्कुल। grep and cert, we will go to know that yeah, in our DNS हम Fortinet factory यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस जबरदस्त। है इन दोनों का। तो अब इससे हम बाहर जाते हैं और हम डिस्कस करते हैं जो हमें करना है आज, फर्स्ट डे का। तो हम FortiGate के बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जी GUI, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन दैट, बट स्टिल आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दैट वन मोर टाइम, जी ओके। जी तो डैशबोर्ड, आप इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर आप विजेट ऐड कर सकते हो। समटाइम्स योर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्ली रिक्वायर कि एक इंटरफेस की बैंडविड्थ हमें देखनी है, राइट, कि कितनी बैंडविड्थ है। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, देखो यहाँ पे ऐड विजेट में हम गए, तो आप मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हो। FortiView एप्लीकेशंस, FortiView एप्लीकेशन, क्लाउड एप्लीकेशन, डेस्टिनेशन, right, everything. So on the requirement of the user or organization you can add. Sometime user, we need VPN, right? We don't need to go to VPN all the time. हमें चाहिए कि एक ही बटन यहाँ पर हो डैशबोर्ड पे जिसके थ्रू हम सारी VPN देख पाए। तो मान लो मैं ऐड जबरदस्त। कर देता हूँ, राइट। तो हम इस डैशबोर्ड के थ्रू VPN देख सकते हैं सारी, राइट। अब आपके पास यहाँ VPN का भी एक आ जाएगा। कैन यू सी दिस वन?
FortiView VPN by Very Capture, nice. ताकि जो कि beginners हैं, for them, if they are logging in, they can just go on status and see all the health of the firewall, कि VPN हमारी कितनी अप है, कितना मेमोरी है, कितनी CPU है, राइट, इस तरीके से। दूसरा, अगर हम बात करें इसके बाद, ये नेटवर्क में जाके आप मल्टीपल चीजें देख सकते हो, लाइक SSL VPN यूजर्स कौन से कनेक्टेड हैं, आपके स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग क्या हो रही है, राइट, आपका DSCP कितना लीज्ड आउट किया हुआ हमने, कितने टाइम के लिए लीज बची है, किस किस इंटरफेस से लीजिंग की हुई है, SD-WAN अगर आप यूज कर रहे हो Okay. तो SD-WAN में कौन कौन से इंटरफेस हैं, हेल्थ चेक्स किन के अप हैं, राइट। सो Okay. दीज ऑल Okay. थिंग्स यू कैन चेक फ्रॉम dashboard, network, and then your assets, 40 different types of assets you are using on FortiGate, like FortiAP, any other thing. Wi-Fi, if you are using FortiAP and SSID, that will come in Wi-Fi. And then FortiView source, destination, application. These all means if I go on FortiView source, I can see all the source and where they are going. Okay. अच्छा. So let us suppose ये source है, मैंने इस source को pick किया 10.0.12. कई बार customer आते हैं, वो कहते हैं कि customers, someone wants that, let us suppose, right, ki there are some source which are using a lot of bandwidth, right. Then you Okay. can go in FortiView source, you can see this source, hover your mouse here, is using 1.62 GB of traffic bytes right now and having 472 sessions, right. So हमें पता है हमारा ये जो source है, अगर आप देखो डाउनलोड कर रहा है 1.59 GB right now. Okay. Oh my God. मतलब Okay. right now means in last 1 hour, if you see जी जी I'm जी in जी. last 1 hour. तो ये सोर्स हमारा काफी ज्यादा मतलब यूजेज कर रहा है, तो हम वी कैन ड्रिल डाउन कि क्या हो सकता है इसमें, या तो इधर यू कैन क्लिक ऑन ड्रिल डाउन और डबल क्लिक ऑन दैट, राइट। Okay. तो आप देख सकते हो व्हाट एप्लीकेशन इट इज यूजिंग एंड हाउ मच ट्रैफिक इट इज सेंडिंग टू दैट, व्हाट डेस्टिनेशन इट इज गोइंग टू, राइट। जबरदस्त. by using that you can get to know about that source कि ये जो ट्रैफिक है, is this the legitimate traffic, अगर नहीं है तो we'll check with the user, right. We'll check through this, we'll check if there is a user, अगर authentication कर रहा है तो हमें user name भी आएगा साथ में, right. ठीक है And ठीक then है. we can check with the user what is going on and what are you using, okay. Okay. And we will get all the information, MAC address, what kind of device they are using, because FortiGate will check the device information through LLDP as well, right. ठीक है. तो ये basic चीज है which you can go through and you know what's going on, right. ठीक है But ठीक है. just to go through that, then there is a part of network. ठीक There है. are two network. If you see on dashboard, I do have network as well. जी जी. This network is just to show SSL, VPN, IPsec, and all the networks. But this network is different. It has information regarding what interface I'm having. If I go there, now let's discuss about zone as well here, right? तो यहाँ पे जब मैं इंटरफेसेस में आया, मैं सारे टाइप के इंटरफेस देखता हूँ, मेरे पास कौन कौन से इंटरफेस है, मेरे पास एक लूपबैक जी. है, राइट, मेरे पास DMZ है जो कि इस टाइम मैंने बंद किया हुआ है बिकॉज इट्स ग्रेड आउट, राइट। मेरे पास इंटरनल एंड मल्टीपल इंटरफेसेस, राइट, एंड some interfaces are having some sub interface like this one, so I can check what exactly it has. तो WAN 2 के अच्छा. अंदर मेरे पास क्या है, IPsec भी बनी हुई है, ऑफिस सेक नाम की, सेकेंडरी अच्छा. ऑफिस, राइट। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, जिसमें प्लस आइकन है, मतलब उसके अंदर कुछ सब इंटरफेस भी हैं, तो आप ऐसे करके उसके अंदर देख सकते हो। तो SD-WAN भी दिखा रहे हैं यहाँ पर, SD-WAN कौन कौन सा मेरे पास तो ये सॉफ्टवेयर SD-WAN, स्विच। मुझे इस SD-WAN की समझ नहीं है, ये करता क्या है वैसे? इसके बारे में हम बात करेंगे, एक दिन हमने ओके. डेडिकेट किया हुआ है। ओके जी. ओके जी. SD-WAN बेसिकली सब वेंडर्स का, अगर आप कॉन्सेप्ट कहोगे तो मैंने चेक किया सब, मैंने सिस्को विप्टेला देखा है, वेलो क्लाउड देखा है, VMware का, ऑल्दो वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, बट इफ वी गो टू कॉन्सेप्ट, SD-WAN is similar everywhere, right? In the interviews, if you go through SD-WAN, till the time they are not asking you product specific, ठीक SD-WAN है. is same in all of the products because समझ it's गया. just doing the same thing, right? We'll discuss about that. तो SD-WAN है कि नहीं है, and here you can create an interface, जो हम बात करने वाले थे। तो जी. आप क्लिक कर सकते हो क्रिएट न्यू पे। अब आप देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट। लेट्स इग्नोर 40 एक्सटेंडर राइट नाउ बिकॉज इट्स अ सेपरेट डिवाइस, ओके। इसको इग्नोर करते हैं, इन 3 ऑप्शंस पे हम फोकस करते हैं। ठीक है. तो पहला इंटरफेस है इंटरफेस क्रिएट करने का। ठीक है जी. अब फिजिकल इंटरफेस तो आप क्रिएट करने से नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज वो नहीं कर ऑलरेडी सकते. क्रिएटेड है। तो अगर हम एब्सोल्युटली. इंटरफेस पे जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं हम, लेट्स सी दैट।
आप ये टाइप्स के इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। VLAN, ओके, आप ईमैक VLAN, आप एग्रीगेट LACP बना सकते हैं, because LACP is open standard, right? PAGP will not be allowed because it's Cisco proprietary. तो आप LACP बना सकते हैं, आप लूपबैक बना सकते हैं, आप PPPoE अगर आप ISP से ले रहे हैं वो बना सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर स्विच बना सकते हैं, SSL VPN इंटरफेस बना सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है अगर आप वैसे भी SSL VPN कॉन्फ़िगर करेंगे, फायरवॉल ऑटोमेटिकली एक इंटरफेस बना देगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर यूजुअली आप LACP यूज करते हैं और VLAN यूज कर सकते हैं। अब VLAN आप अच्छा कैसे बनाते हैं? मान लो मैं VLAN बना रहा हूँ, राइट? जी सो आई गो विद नॉर्मल टेक्नोलॉजी विच एवरीवन इज यूजिंग 802.1q. I'll select the parent interface. Let us suppose मुझे एक VLAN बनाना है इंटरफेस A पे. अच्छा Okay, इंटरफेस एक A is the name of right, interface basically right. okay I'll explain what does it means. And VLAN ID देनी है 10. जैसे ही मैं ये करूंगा, I'll be having one interface on interface A. How does it work? अगर हम सिस्को की बात करें, सिस्को में एक कॉन्सेप्ट होता है राउटर ऑन अ स्टिक, राइट? जी सिमिलरली FortiGate पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है, बट working is almost similar. So let us suppose this is our FortiGate, okay, and this is FortiGate interface A. ठीक है, क्लियर? आपका इंटरफेस A ओके is connected to a Cisco switch here, ठीक है जी और उसके पीछे आपके पास आपके मल्टीपल यूजर्स हैं। लेट अस सपोज ये यूजर है, ये यूजर है, एंड सिस्को में आपने इस यूजर को डाला हुआ है एक्सेस VLAN 10 में, इस यूजर को डाला हुआ है एक्सेस VLAN 20 में। क्लियर, सिंपल, राइट? सिस्को नॉर्मल ओके थिंग। अगर कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे यू आर नॉट गेटिंग इट, जस्ट लेट मी नो, जी डोंट जी डोंट हेजिटेट, राइट? शुक्रिया कोई बात नहीं। So access VLAN 10, access VLAN basically means there is no tagging at all. Tagging only happens on trunk. जी जी तो access VLAN पे कभी tagging नहीं होती. How does switch handle access VLAN traffic? It will ट्रंक receive the traffic. It will send out through all the interface if they belongs to VLAN 10. That's the जी first thing. जी And अगर हम Wireshark run करेंगे तो आपको tag ना इस पे दिखेगा ना इस पे दिखेगा. But when it send, so access VLAN का traffic switch either send on access VLAN 10 or send on trunk. बट हम ट्रंक पे अगर देखेंगे वायरशार्क कैप्चर करके तो हमें VLAN टैग दिखेगा, क्योंकि ट्रंक विल कीप द VLAN टैग, राइट? ट्रंक विल कीप द VLAN. डू यू एग्री ऑन दैट? जी सर जी ऑफ कोर्स हाँ जी। तो अब एक्सेस FortiGate और स्विच के बीच में ट्रंक ही बनेगा, because we are choosing 802.1q, if you see that, right? That's a जबरदस्त trunking protocol. ठीक है तो जो ट्रंक बनेगा वो मान लो स्विच के इस पोर्ट से एंड FortiGate के ए पोर्ट पे बना है, अच्छा क्योंकि ए पोर्ट से कनेक्ट किया ना हमने स्विच को। जी बिल्कुल एक फिजिकल पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, वर्चुअल पोर्ट से तो एब्सोल्युट नहीं करेंगे, राइट? एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली नाउ FortiGate के ए पोर्ट से हमने इस स्विच को कनेक्ट किया, इट इज एक्टिंग एज अ ट्रंक। सर जी एक नाउ क्वेश्चन है प्लीज गो अहेड सर प्लीज। सही ये सब इंटरफेस बन गया इस टाइम पर अभी सब इंटरफेस हमने नहीं बनाया कहीं भी, अच्छा ओके अभी मैं ओके ठीक उसमें जाने वाला हूँ। हाँ जी। ओके सो ए इज आवर फिजिकल इंटरफेस। आप FortiGate को जब देखते हो, अगर FortiGate आपने देखा हो फिजिकल डिवाइस, तो उसके पीछे इंटरफेस होता है फिजिकल, A B C इंटरनल 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। तो उसके पीछे एक मान लो फिजिकल इंटरफेस ए, जिससे मैंने एक वायर डाली और वो वायर मैंने इस स्विच पे लगा दी, ठीक है जी राइट? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया FortiGate पे। अब FortiGate पे अनटैग ट्रैफिक, अगर इस स्विच के पीछे कोई एक होस्ट है जो अनटैग्ड है, जिसपे हमने कोई एक्सेस विलन ही नहीं डाला, इसका ट्रैफिक आएगा तो वो इजीली कम्युनिकेट कर सकता है ए से, बिकॉज ए भी अनटैग्ड है, नोटेड राइट? नोटेड बट अब मैं ए पे जाके सिमिलरली जो मैंने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन की बात करी है, मैंने एक VLAN बनाया है VLAN 10, और मैंने पेरेंट इंटरफेस उसका क्या रखा है, ए। कैन यू सी दिस? ए वेरी गुड VLAN टेस्ट VLAN। इसकी आईडी देता हूँ, मान लो अभी के लिए 999। इसको आप 10 ही समझो, आई एम जस्ट गिविंग 999 बिकॉज मे बी एंट्री नॉट फाउंड, ओके इट्स नॉट देयर, सॉरी। लेट्स मेक ऑन इंटरनल टू, बिकॉज ये यूज नहीं हो रहा ना। ठीक है नॉट फाउंड, एक सेकेंड। लेट्स गो हियर, देखते हैं हमारे पास इंटरफेस कौन कौन से अवेलेबल है। मैनेजमेंट है, उस पे वो तो लूप बैक है, उस पे हम नहीं करेंगे। एक इंटरनल इंटरनल 5 5 है अवेलेबल है, लेट्स डू ऑन दैट। इंटरफेस
टेस्ट। ओके, वीलन आईडी में देता हूँ 99 और हमें डीएससीपी अभी बनाना नहीं है इसे। वी कैन मेक डीएससीपी एज वेल बट राइट नाउ हम नहीं बना रहे हैं। ओके सो नाउ इट्स क्रिएटेड राइट। ठीक है जी। तो अब अगेन अगर मैं इंटरनल 5 पे यहाँ जाऊंगा तो आपको प्लस का आइकन दिखना शुरू हो जाएगा बिकॉज इट हैज जबरदस्त। समथिंग राइट। ठीक। जैसे मैंने ओपन किया यू कैन सी दिस टेस्ट वीलन ठीक है। आईडी 99। अगर आपको मल्टीपल चीजें देखनी है यू कैन क्लिक हियर हियर एंड यू कैन जस्ट होल्ड डाउन and you can see DHCP client, everything, right? MAC address, everything. I just want to जबरदस्त। see VLAN. Click here. Now if I go there, I can see VLAN ID वाह। 90. ठीक है जी। तो टेस्ट VLAN हमने बनाया 99। फॉर नाउ इसे 10 मानो आप, 99 मत मानो। मान 99 आई लिया। जस्ट मेड बिकॉज इट्स इन मान प्रोडक्शन लिया। फॉर ऑल, आई मान डोंट लिया वांट टू सर जी। मेक एनी चेंज। जी जी। ठीक है जी। अब मान लो वही सेम कॉन्सेप्ट है। अब इसको ए इंटरनल 5 को भी ए मानो अभी के लिए, क्योंकि बिकॉज आई ठीक। डोंट वांट टू चेंज दिस। जी 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 तो जी। ये ए पोर्ट है जिसमें हमने VLAN 10 बना दिया। ठीक है अब ये जो 999। VLAN 10 है, हाँ जी हमने बनाया 99 है बट ओ ठीक, अब फ्रॉम ठीक है दिस मान गया। पिक्चर। मान गया या मान गया। तो VLAN 10 हमने जो बनाया है इट इज अ सब इंटरफेस ऑन आवर इंटरनल इंटरफेस ए। एग्री। ठीक ठीक है ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रैफिक कैसे चलने वाला है। एक होस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, उसने ट्रैफिक भेजा। जैसे स्विच पे ट्रैफिक आया, स्विच ने चेक किया एक्सेस VLAN 10 में है। स्विच या तो उसे एक्सेस पोर्ट्स पे भेजेगा जितने भी 10 में है, या उसे भेजेगा ट्रंक पोर्ट पे। एग्री। एंड वी आर जी हैविंग ट्रंक पोर्ट। अभी हमने देखा था ट्रंक पोर्ट है, FortiGate और स्विच के बीच में ट्रंक ही होगा। जी। तो ट्रंक पे जैसे ही भेजेगा वो टैग लेके भेजेगा। अगर हम वायरस्ट्रैक भी भेजेंगे हमें टैग दिखेगा 10। अब वो टैग ट्रैफिक 10 का कहाँ पे रिसीव होगा? इट विल बी रिसीव्ड ऑन VLAN 10, वाह। ओके। राइट? बिकॉज वी ऑलरेडी हैविंग द इंटरफेस विद VLAN 10 ऑन FortiGate। ठीक। क्योंकि टैग आ रहा है तो FortiGate knows that I am getting a traffic with tag. Let's receive on, if I am having a correct interface with that हाँ। VLAN, let's receive on that. हाँ अगर ऐसा अच्छा, होता है, अगर फोर्टीगेट अगर वो रिसीव करते हैं ट्रैफिक, फोर्टीगेट ने हम्म, रिसीव ट्रंक से ट्रैफिक हम्म, आई, फोर्टीगेट ने रिसीव की 10, तो वो उसको हम्म, अनटैग करके नीचे भेज देगा। वो भी डिपेंड करता है कि अच्छा अगर वो भी आपके डिपेंड पास मान करता है। लो ओके। FortiGate के पीछे एक इंटरफेस है जो कि कोई टैग नहीं है, एक आपने VLAN 20 और बना रखा है FortiGate के पीछे, अच्छा और अगर यहाँ से 10 से यहाँ पे पिंग कर रहे हैं तो FortiGate सिस्को जैसे राउटर और स्टिक वाला ठीक काम है करता है। ठीक है। FortiGate 10 का ट्रैफिक रिसीव करेगा, राउटिंग लुकअप करेगा और देखेगा मुझे यहाँ से भेजना है, और वो 20 के इंटरफेस में, तो दोबारा टैग लगाएगा 20 का और यहाँ से भेजेगा, जबरदस्त। अगर यहाँ कोई स्विच भी है तो, ओके जी ओके। राइट? और वो स्विच अनटैग करके आगे भेज देगा। क्लियर? नोटेड। ये डिपेंड करता है। और अगर यहाँ पे कोई इंटरफेस है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है विदाउट एनी VLAN, तो FortiGate नो डाउट टैग रिमूव करेगा और वहां डायरेक्टली भेज देगा। बस। ठीक है। जबरदस्त। ओके। अब मैं बात कर रहा हूँ, अब आपको क्लियर हुआ कि VLAN कैसे FortiGate पे काम कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है यूजर्स आएंगे, उनकी यहाँ पे टैगिंग प्रॉपर नहीं चल रही होगी, एंड दे विल स्टिल I mean tell you that it is not working at all. Then जी। what you can do packet captures and see if we are getting packet on this interface, parent interface, with a tag or not, हाँ right? ओके ओके। उसके according we can decide that yeah जी we are getting correct traffic or not. सर, इसका Also छोटा सा एग्जांपल जरूर कराइए एंड में। अभी नहीं, जब भी मौका मिलेगा इसका। हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। वेरी गुड। We'll do the configuration from tomorrow only. तो जबरदस्त। we'll work on that, yeah. तो अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ। लेट अस सपोज आप, कई बार ऐसा होता है बिकॉज FortiGate can act as a DHCP server. Why to have a separate DHCP server in your organization, right? जी Because if you are paying for FortiGate, why not to use all the features, right? So sometimes users will enable DHCP server on VLAN 10, like the way I can enable here. If I go here, if you see here, uh, हाँ। can you see this DHCP server? अच्छा, तो मैं यहाँ मैं पे समझा आप ऊपर, मैं समझा ऊपर वाला आप टिक मार्क करने लगे। एक ऊपर भी था ना ऑप्शन डीएससीपी का। कहाँ ये पर? अच्छा, ये नहीं उस नहीं नहीं इंटरफेस को नहीं, असाइन करने के उस लिए। ओके इंटरफेस ओके। को असाइन करने के लिए कि अच्छा अच्छा। अगर वो इंटरफेस DHCP ले रहा है कहीं से, पर ओके। अब मैं इंटरफेस को ही DHCP बनाना चाहता हूँ कि वो लीज जबरदस्त। आउट करे। तो ठीक है मैंने जी। लीज आउट किया, मैंने मान लो यहाँ पे कोई भी IP रेंज दी, ओके, मैंने ओके किया। अब जी जैसे मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे जो यूजर्स हैं,
मान लो यहाँ पे एक यूजर ने एक कंप्यूटर ऑन किया, राइट नाउ इट डज नॉट हैव एनी आईपी, तो वो क्या भेजेगा? डिस्कवर भेजेगा डीएचसीपी के थ्रू। जी। डीएचसीपी आपको ओवरव्यू आता है? नहीं तो आई कैन जस्ट गो थ्रू दैट इफ यू नहीं नहीं, वांट। वो डोरा डोरा चीज है ना। डोरा, परफेक्ट, डोरा। तो डिस्कवर भेजेगा, डिस्कवर विल कम एज अनटैग्ड हियर, केम टू वेरी स्विच, गुड, ओके। switch will tag it with 10 while sending out to the FortiGate because it's sending जबरदस्त, on ओके। trunk, right? तो ठीक है, 10 के टैग के साथ हमारे पास डिस्कवर आया। ठीक Once है, FortiGate will receive, it knows that it is coming with tag 10, तो हमें ठीक कहाँ है। से भेजने लीज? इस इंटरफेस से देनी है, नोट फिजिकल से। तो 10 पे भेजेगा जबरदस्त, और उसके थ्रू उसको लीज मिल जाएगी। क्लियर? जबरदस्त, ओके। तो डिस्कवर भी हमारी टैग ट्रैफिक से आएगी और टैग होके विलन ठीक से है, ही लीज ले लेगी। ठीक है। So simple, right? There is nothing सर complicated here so बस far. एक थोड़ा क्वेश्चन सर जी, हम हम्म, इसी इंटरफेस के ऊपर एक और वीलन 996 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो आप। इस अच्छा, इंटरफेस पे आप मल्टीपल विलेंस बना सकते हो, समझ गया, गुड। क्योंकि अगर एक इवन सिस्को में भी अगर आप जाओ, एक इंटरफेस पे मल्टीपल सब इंटरफेस बना सकते हैं ना, राइट? ठीक है, सिमिलरली ठीक, आप हाँ इस हाँ बिल्कुल। इंटरफेस पे मल्टीपल विलेंस बना सकते हो, देयर इज ठीक नो है, इश्यू इन दैट। ठीक है, ठीक है। This is about VLAN. Let's go to the zone part. Zone is जबरदस्त। nothing. Just a simple thing. If you understand this, zone basically आया क्यों है? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आप मान लो आपके पास 40 गेट में, दोबारा मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, वो बहुत इजी रहेगा आपको। लेट अस सपोज आपके पास 40 गेट के पीछे 5 इंटरफेस है, इंटरनल 1, इंटरनल 2, इंटरनल 3, 4 एंड 5। ओके? ठीक है, एंड 40 गेट के वैसे तो वैन भी पीछे ही होगा, लेकिन मैं सिर्फ फॉर द इज ऑफ डायग्राम मैं यहाँ वैन जी दिखा जी, रहा हूँ। मान लो वैन ठीक है यहाँ जी, पे है। ठीक है, सो दिस इज आवर वैन, इंटरनल 1, वेट, 1, 2, 3, 4 एंड हियर 5। अब आपको सब एवरीवन बिहाइंड दिस इंटरफेसेस नीड इंटरनेट, राइट? एग्री? सबको इंटरनेट चाहिए होगा। मान लो इंटरनल 1 के यूजर्स को भी चाहिए, 2 जी के जी, यूजर्स को भी चाहिए, 3 को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो यू आर गोइंग टू मेक 5 पॉलिसीज। डू यू एग्री? हाँ One from 5 internal पॉलिसी, 1 to n, 2 to n, हाँ 3 to n। ठीक है तो जी, पहली चीज तो आप 40 गेट पे 5 पॉलिसी बना रहे हो, विच मेक्स योर कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हार्डर, ठीक है, राइट? सेकंड थिंग, मैनेजमेंट हार्डर, जी जी, राइट? सो rather than doing that, there is a concept of zone. What you can do, you can make a zone, और इस जोन में आप पांचों इंटरफेस को डाल सकते हो एंड मेक इट अ लैन जोन। अब इसका यूज क्या है? यू मेड अ जोन, लैन जोन, और हमने 5 के 5 इंटरफेस उस जोन में डाल दिए। अब हम जब फायरवॉल पॉलिसी बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? लैन जोन टू वैन। एग्री? हेलो? बिल्कुल हेलो? सर जी, बिल्कुल जबरदस्त ओके, ओके। जबरदस्त। तो जोन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। और दूसरा, आप जोन में बाय डिफॉल्ट इंट्रा जोन ट्रैफिक अलाउ कर दोगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है, ये कर दोगे नहीं आप, होता है। अच्छा, विच मीन्स, वैसे अगर आपको मे बी आपके मान लो या राउटर होते या कुछ होता, और मे बी ये सारी चीजों के लिए भी आपको पॉलिसी चाहिए होती है, 1 to 2 पॉलिसी, 2 to 3 पॉलिसी, 3 to 4 पॉलिसी, राइट? इतनी सारी पॉलिसीज आपको चाहिए होती है इंट्रा जोन के लिए। बट बाय डिफॉल्ट एक जोन आपने बनाई और इंट्रा जोन ट्रैफिक आपने अलाउ किया, तो बाय डिफॉल्ट 1 to 2, 1 to 4, 1 to 3, 1 to 5 ट्रैफिक विल बी अलाउड। तो आपकी जबरदस्त। सिर्फ एक पॉलिसी बनी है, राइट? तो हम्म, zone will make your configuration and management easier here. ठीक So ठीक है, let us suppose I'm going on zone. See, block intra-zone traffic. Can you see this? हम जी इसके जी, बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो अलाउ कर देगा, जो मैंने यहाँ पे बात की थी कि अच्छा, इंट्रा जोन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 अलाउ करना है। लेकिन अगर मुझे नहीं चाहिए कि ये ना हो, तो मैं इसको इनेबल कर दूंगा। और फिर इस जोन में मैं मान लो मेंबर्स डाल देता हूँ। लेट अस सपोज फॉर द टाइम बिंग मैं अनयूज्ड इंटरफेस डालता हूँ, इंटरनल 5 एंड टेस्ट। ओके? एंड इसको भी नेम देता हूँ टेस्ट डॉट। ये जोन बनी है। अब जब मैं फायरवॉल पॉलिसी बनाऊंगा, अब दो इंटरफेस है मेरे, मल्टीपल इंटरफेस है, मैं पॉलिसी में डायरेक्ट जोन ले सकता हूँ, ओके, rather than using all the interface and making separate policies. So zone is nothing. We'll do an lab later ठीक है, on from जबरदस्त tomorrow. जबरदस्त।
But from the theory part, you got to समझ know गया that this is something simple, right? There is सर nothing जी complicated. एक छोटा क्वेश्चन है प्लीज सर हाँ जी जी, हाँ जी, प्लीज. आपने ये अगर हम इसको ब्लॉक ही रखते हैं फॉर एग्जांपल इंट्रा को तो हमें फिर ओके, मल्टीपल पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी एम आई राइट फ्रॉम बिल्कुल बिल्कुल इंटरफेस 1 टू इंटरफेस 2 उधर जोन नहीं होगा उधर बिल्कुल इंटरफेस टू इंटरफेस करना पड़ेगा एम आई राइट बिल्कुल. इसका बिल्कुल सही है, यू आर राइट. इसका रीजन ये है कि देर आर टाइम्स यू, लेट अस सपोज यू आर हैविंग 8 इंटरफेस, राइट? तो हमें चाहिए कि सिर्फ इंटरफेस 1 कैन कम्युनिकेट विद 8, रेस्ट कोई भी ना कर पाए. हाँ अगर मैं इनेबल कर देता हूँ इंट्राजोन ट्रैफिक तो सब भी कर पाएंगे सबसे, है ना? जी जी बिल्कुल जो कि बिल्कुल हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं उसको डिसेबल करूँ, इनेबल करूंगा हम्म, ब्लॉक इंट्राजोन को, ताकि ठीक ये है कोई कहीं ना जा पाए. एंड देन आई विल मेक अ सेपरेट पॉलिसी 1 to 8. जबरदस्त वेरी गुड सर जी राइट, क्लियर? तो जी इसका ये सॉल्यूशन है. बट समटाइम कस्टमर नीड कि हमें कोई पॉलिसी ना बनानी पड़े, और ये हमारा इंटरनल नेटवर्क ही है, तो वी नो द ट्रैफिक, तो वो उसे अनचेक कर देंगे. इट टोटली ठीक है जी डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ठीक है सर जी ठीक है जी. नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें, फायरवॉल पॉलिसीज. वी हैव डिस्कस जोन जी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट FortiGate GUI. जी जी लेट्स गो टू फायरवॉल पॉलिसीज. ठीक है तो फायरवॉल पॉलिसी बेसिकली इन सिंपलर वर्ड्स इज ACL, राइट? जी ACL में जैसे होता है, आप रूल्स बनाते हो ACL में, राइट? कि या सोर्स टू डेस्टिनेशन अलाउ दिस ट्रैफिक, डिनाई दिस ट्रैफिक, एंड इफ देयर इज नो वन मैचिंग दोस ACL, इम्प्लिसिट डिनाई, ठीक है ऑल द जी ट्रैफिक शुड बी डिनाई. एग्री? क्योंकि जी अगर ACL ना हो, मान लो किसी ट्रैफिक की अलाउ की, और अगर हम ना बनाए कुछ भी, तो बाय डिफॉल्ट सारा ट्रैफिक डिनाई करता है ACL, बिकॉज ठीक है जी इम्प्लिसिट डिनाई होता है उसमें, है ना? ओके जी ओके सिमिलरली FortiGate works. We have implicit deny in the bottom. I'll go there and you'll see this implicit. ठीक है Do you see this? ठीक है मतलब कि अगर आप मान लो एक इंटरनल 1 टू इंटरनल 2 ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, तो आप उसकी पॉलिसी बनाएंगे. लेकिन अगर ट्रैफिक इंटरनल 1 टू इंटरनल 3 जाना चाहता है और उसकी पॉलिसी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा? डिनाई होगा. क्योंकि आप देख सकते हैं ऑल ऑलवेज ऑल सर्विस डिनाई, ठीक है ठीक है which means you have to make a policy for any traffic on FortiGate. जबरदस्त ओके, अब पॉलिसी कैसे बनती है? मान लेते हैं मैं क्रिएट न्यू पे जाता हूँ. नेम सिंपल, स्टैंडर्ड ZTNA टाइप. इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, ZTNA इज ठीक अ है सेपरेट बिग टॉपिक. विल डिस्कस अबाउट ओवरव्यू ऑफ दैट. ठीक है जी इनकमिंग इंटरफेस, लेट अस सपोज LAN. आई एम चूजिंग LAN. ओके, सर इधर जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं वैसे जस्ट जस्ट बिल्कुल, आस्किंग ठीक है डेफिनेटली जी सब डेफिनेटली. समझ गए जोन बनी इसलिए क्योंकि देखो अभी मैंने जोन बनाई थी टेस्ट डॉट. कैन यू हाँ सी दिस इज माय जबरदस्त जोन? जबरदस्त और इस जोन के अंदर दो इंटरफेस है, देखो. तो आप जबरदस्त जोन बनाई, जोन कॉन्सेप्ट ही इसलिए ताकि हम यहाँ पे ईज ऑफ मैनेजमेंट करें, राइट? जबरदस्त Outgoing interface, let us suppose your WAN. So let us suppose I am having virtual WAN link ठीक है because मैं जी SD-WAN यूज कर रहा हूँ, right? uh, SD-WAN is ये रहा virtual WAN link. ठीक है, क्योंकि virtual ठीक है WAN link means SD-WAN will come sometimes in depends on firmware to firmware. किसी firmware में वो SD-WAN होता है, किसी में virtual WAN link होता है. ठीक है इसके जी अंदर हमारे सारे इंटरफेस आते हैं WAN के, जब ठीक है हम जी SD-WAN यूज करते हैं. तो डेस्टिनेशन में लूंगा. ओके, हम्म सोर्स. सोर्स में कैच है. if you want to limit on the source, you can जी do all. और if you want just कि कुछ IPs ही मेरे उस इंटरनल नेटवर्क में जा पाए, तो आप क्रिएट कर सकते हैं प्लस आइकन से. जबरदस्त एड्रेस ग्रुप, IPv6 एड्रेस, थ्रेट फीड. अगर आप थ्रेट फीड यूज कर रहे हो एक्सटर्नल, राइट? ठीक है जी IPv6 एड्रेस ग्रुप. तो मान लो मैं एड्रेस करता हूँ, तो मैं एड्रेस पे जाके, इसमें मल्टीपल टाइप्स हैं, राइट? तो मान लो मैं सबनेट देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे 10.1.1.0 सबनेट में सिर्फ 10.1.1.2, 10.1.1.2, जस्ट ये दो होस्ट इंटरनेट ले. तो मैं ये जबरदस्त बना दूंगा, राइट? ये तो है सबनेट टाइप. सोर्स में और भी डिफरेंट है. IP रेंज, यू कैन मेक FQDN. कि लेट अस सपोज यू आर हैविंग सर्वर. यूजुअली दिस इज यूज फॉर डेस्टिनेशन. कई ठीक बार है क्या होता है, हम डेस्टिनेशन में IP एड्रेस नहीं डालना चाहते, हम डालना चाहते हैं डेस्टिनेशन सिर्फ www.google.com पे जाए, तो यानी उसके ऑटोमेटिकली मल्टीपल फायर. आईपी एड्रेसेस होंगे वो खुद ही करे राइट, ठीक है ठीक है राइट. ठीक FortiGate will automatically do the DNS query. अगर google.com डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वर्स यूज कर रहे हैं और उसके मल्टीपल IP एड्रेस है, आपको
वन बाई वन ही डालना है, वो FortiGate की हेडेक है। ठीक है FortiGate रिजोल्व करेगा एंड इट विल सेंड टू योर google.com। ठीक है बट जी। फॉर दिस पॉलिसी अगर हम डेस्टिनेशन में डालते google.com तो सारे यूजर्स विल ओनली बी एबल टू गो टू google.com, रेस्ट ठीक है ऑल ट्रैफिक विल हिट implicit deny till the ठीक है time जी। you don't make a policy। ठीक तो है FQDN जियोग्राफी, आप इसमें कंट्री डाल सकते हो कि कनाडा, सोर्स में आप कनाडा डाल दो मान लो। ओए होए अगर होए आप होए। कोई यूएस में मान लो कुछ ऐसी पॉलिसी है तो ही और शी कैन नॉट एक्सेस दैट। तो ये ओके यूजुअली ये इंटरनेट के विप के लिए पॉलिसी यूज होती है, विप ट्रैफिक के लिए। विल डिस्कस व्हाट इज विप, ओके वर्चुअल आईपी। ओके। ठीक बट है वर्चुअल आईपी में क्या होता है, योर इंटरनेट फ्रॉम द इंटरनेट यू आर कमिंग टू द फायरवॉल। ठीक है सो ठीक ऑन है। दैट टाइम we don't want some countries, right? So what we can do, let us suppose मेरे को सिर्फ कनाडा एंड यूएस का ट्रैफिक चाहिए। So I'll make a geography, I'll allow just Canada and US, so only Canada और US का ट्रैफिक ही आ पाएगा उस पॉलिसी के थ्रू, right? This is जबरदस्त। geography। Then dynamic addresses are used if you are having fabric connectors, if you are having tagging on the FortiGate and those tags are synced with the FortiGate, then dynamic तो addresses ये are मुझे used here। फैब्रिक वगैरह की समझ नहीं है अभी इतनी, आई एम सॉरी। It's fine, मैं थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू दूंगा। That is deep, that is not, I mean, हाँ, on that level, and ठीक है I ठीक है। probably आपको यूज भी नहीं करना होगा ज्यादा, बट मैं फिर भी आपको सारा ओवरव्यू दूंगा उन चीजों का, डोंट वरी। शुक्रिया सर जी। एंड देन डिवाइस मैक एड्रेस, आपको अगर स्पेसिफिक मैक एड्रेस, क्योंकि आईपी एड्रेस कैन चेंज बट मैक हम्म, एड्रेस कैन नॉट चेंज, राइट? जबरदस्त। So let us suppose you are having a user who's changing the IP address again and again, who's assigning static IP, but आपको वो यूजर अलाउ नहीं करना। what you'll do, आप मैक एड्रेस दे दोगे। अब वो यूजर कंप्यूटर तो किसी और का नहीं लेगा ना मैक हाँ एड्रेस वाला, जी 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 राइट? जी। तो उस केस में आप मैक एड्रेस पॉलिसी बनाओगे। सो जबरदस्त। दीज आर द थिंग्स यू कैन यूज हियर, राइट? यहाँ पर निगेट सोर्स बेसिकली मींस निगेट, मतलब आप कुछ सोर्स निगेट कर रहे हो। जैसे मैं सोर्स में डाल देता हूँ ऑल, ठीक है। ऑल मतलब सारे यूजर जो भी मेरे लैन में है, वो हम्म। निगेट सोर्स पे इनेबल करता हूँ और मैं वहां पे क्लिक करता हूँ 10.1.1.1। अच्छा। तो इससे क्या होगा कि सारे सोर्स एक्सेप्ट दिस सोर्स, जबरदस्त। राइट? ठीक ऐसे है। सेम गोज विद नेगेट डेस्टिनेशन। अगर मैं 88884444 मल्टीपल डेस्टिनेशन डालता हूँ, नेगेट डेस्टिनेशन कुछ डाल देता हूँ, मान लो मैं हम्म। इंटरनेट ऑल कर देता हूँ, पूरे जी इंटरनेट जी। पे जाए और मैं नहीं चाहता फेसबुक पे जाए, तो नेगेट डेस्टिनेशन और यहाँ पे मैं एक FQDN बनाऊंगा facebook.com। तो इस पॉलिसी के थ्रू सब जगह जाएंगे यूजर्स, बट फेसबुक अलाउड नहीं होगा। वाह। ओके। स्केड्यूल, स्केड्यूल यूजुअली ऑलवेज ही रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन वर्क 24/7 इंटू जी थ्री जी सिक्सटी फाइव जी जी राइट? जी जी बट जी जी। समटाइम्स सम स्कूल्स, लेट अस सपोज कोई स्कूल है वो 5 दिन काम कर रहा है, या आवरली वो चाहते हैं यूज, मतलब कोई ब्रेक आवर्स होते हैं उनके, और उस टाइम चाहते हैं वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कैन एक्सेस फेसबुक और समथिंग, राइट? तो वो जी। क्या करेंगे, फेसबुक पॉलिसी बनाएंगे, डेस्टिनेशन एज फेसबुक ओनली। एंड देन स्केड्यूल में क्या करेंगे, स्केड्यूल में ऑलवेज की जगह आप स्केड्यूल चेंज करके आवरली कर सकते हो, हाँ। क्रिएट कर सकते हो नया स्केड्यूल। अच्छा। और सिर्फ टाइम उस, टाइम टाइम बेस्ड एसीएंस। राइट, राइट। सो उस दौरान सिर्फ ड्यूरिंग दैट स्केड्यूल ओनली वो यूजर्स विल बी एबल टू एक्सेस दोस दिस ठीक है पॉलिसी। ठीक है अदरवाइज ठीक है। इट विल गो टू इम्प्लिसिट डिनाई। ओके। एक्शन, एक्सेप्ट डिनाई, राइट? डिनाई ठीक है करना है जी। आपको वो ट्रैफिक या एक्सेप्ट करना है। जी इंस्पेक्शन मोड, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हम दोबारा आते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। नेट, नेट की मैंने आपसे बात की थी, बाय जी डिफॉल्ट जी। आउटगोइंग इंटरफेस यूज करता वाह। है, बट यू कैन यूज ठीक है आईपी पोल। ठीक है हाँ, ठीक है। एंड विल डिस्कस अबाउट आईपी पोल एज वेल। सो राइट नाउ इसको छोड़ दो आप। प्रिजर्व सोर्स पोर्ट की सोर्स पोर्ट सेम ही लेके चलता रहेगा। पैसिव हेल्थ चेक्स करेगा। दिस आर नॉट नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, दैट्स व्हाई दे आर डिसेबल, बट जस्ट टू लेट यू नो। प्रोटोकॉल ऑप्शन, इसको आप डिफरेंट प्रोटोकॉल ऑप्शंस यूज कर सकते हो कि आपको कोई प्रोटोकॉल से स्पेसिफिक उन प्रोटोकॉल्स पे जाना है तो आप वो ओके। यूज कर सकते हो। सेम आप यहाँ पे सर्विसेज भी होना चाहिए, यहाँ पे सर्विसेज का एक ऑप्शन होगा, सोर्स डेस्टिनेशन शेड्यूल एक्शन, या इसमें सर्विसेज नहीं आ रहा, दैट इज व्हाई वी आर हैविंग प्रोटोकॉल ऑप्शन। हाँ वेरी लेट मी स्ट्रेंज, सी। लेकिन सर्विस समझ गया आप क्या कह रहे हैं, इट सर्विसेज होना टोटली चाहिए। डिपेंड्स ये किस किस मोड में कर रहा है, क्योंकि FortiGate पॉलिसी बेस्ड और डिफरेंट नेट बेस्ड और प्रोफाइल बेस्ड फायरवॉल होता है, तो वो देखते हैं, उस पर जाता हूँ मैं। जी और ये है आपकी यूटीएम्स। ठीक है। तो अगर आप कुछ भी इनेबल करते हो बाय डिफॉल्ट FortiGate से दी हुई तो होती ही है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट बेसिकली मींस FortiGate विल चेक द नॉन सिग्नेचर्स और बाय डिफॉल्ट ब्लॉकिंग non vulnerabilities, but if you want to make changes according to you can edit and make the changes। अच्छा। हम इस टॉपिक पे भी जाएंगे, बट राइट नाउ आई ओके। एम जस्ट गोइंग थ्रू जी जी दैट। जी ओके। जी जी। एंड नेक्स्ट योर SSL इंस्पेक्शन, जहां पे हमने बात की थी डीप इंस्पेक्शन की। राइट नाउ इट्स नो इंस्पेक्शन। आप जैसे ही यहाँ पे कुछ भी इनेबल करोगे ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि ओह।
कोई भी एंटीवायरस वेब फिल्टर कैनॉट वर्क विदाउट चेकिंग द हेडर ऑफ ट्रैफिक। क्योंकि वाह। अगर आप वेब फिल्टर की बात करो तो वेब फिल्टर कैसे चेक करेगा FortiGate? इट हैज टू चेक कि आप कहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, राइट? ठीक है, ठीक है। वेबसाइट मान लो आपने facebook.com डाला है और आपने वो वेब फिल्टर पे ब्लॉक की हुई है, राइट? और यूजर्स फिर भी उस वेबसाइट पे अपने कंप्यूटर से जाने की ट्राई कर रहे हैं। मान लो यूजर इज ट्राइंग टू गो टू facebook.com एंड ऑन योर वेब फिल्टर यू आर ब्लॉकिंग दैट लाइक दिस। Here you are blocking that facebook.com. आई एम डूइंग वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड मीन्स फेसबुक www एनीथिंग, कुछ भी यूज कर लो। तो मान लो मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मतलब जी यूजर्स फेसबुक पे ब्लॉक होने चाहिए, राइट? अगर कोई जी जी। फेसबुक पे जाना चाहता है। तो अगर ऐसा होता है, देखो ये एरर भी वही कह रहा है कि नो इंस्पेक्शन प्रोफाइल डज नॉट परफॉर्म SSL इंस्पेक्शन, सो इट शुडंट बी सेलेक्टेड विद अदर UTM प्रोफाइल और फीचर, सो यू हैव टू चेंज इट टू सर्टिफिकेट एटलीस्ट, राइट? वाह। ओके तो अभी ओके। मैं इसको डिसेबल करता हूँ। पर पॉइंट ये है कि वेब फिल्टर पे जब एक यूजर का ट्रैफिक फेसबुक पे गया, वो FortiGate पे आया। FortiGate, हाउ हाउ विल FortiGate चेक कि ये यूजर फेसबुक पे जा रहा है? FortiGate will perform the certificate inspection. FortiGate will decrypt the traffic. By decrypting, FortiGate will check the FQDN. Once it check the FQDN, it will send that traffic to FortiGuard, match the category, and see if you are blocking it. ठीक If है। you are blocking it, FortiGate will automatically block that. उसके आगे वो भेजेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन एटलीस्ट ये चाहिए इधर होता है। कौन सा सर्टिफिकेट आता है जनरली? कौन सा यूजुअली सर्टिफिकेट? बाय डिफॉल्ट FortiGate का आएगा, बट आप खुद अच्छा। का सर्टिफिकेट भी इंपोर्ट कर सकते हो। पर सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन में आपको खुद का करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें वार्निंग नहीं आती यूजर को। बट अगर आप ओके। डीप इंस्पेक्शन यूज कर रहे हो और FortiGate का बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा है, तो आपको यूजर्स को सर्टिफिकेट वार्निंग आएगी दैट दिस साइट इज नॉट सिक्योर, क्योंकि अच्छा, ये डीप रूट सी इंस्पेक्शन, सर, ये रूट सी होता है कि आइडेंटिटी सर्ट सर्ट होता है? ये कौन सा सर्ट होता है? नॉट रूट सी है, FortiGate अच्छा फैक्ट्री। FortiGate अच्छा। फैक्ट्री, या ऑल्दो ये CA सर्टिफिकेट ही होता है, पर ओके। FortiGate फैक्ट्री होती है। तो सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन में CA सर्टिफिकेट नहीं होता है, मतलब उसमें। लेकिन अच्छा। अगर आप डीप इंस्पेक्शन यूज कर रहे हो तो आपका CA सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि डीप इंस्पेक्शन में FortiGate डिक्रिप्ट करता है पहले आपका TLS कनेक्शन, और फिर नया TLS कनेक्शन इनिशिएट करता है डेस्टिनेशन के साथ। ठीक तो है। इस केस में FortiGate खुद रिप्लाई दे रहा होता है अपने सर्टिफिकेट से। ओके फॉर द ओके। करेक्ट, लेट अस सपोज मैंने डीप इंस्पेक्शन इनेबल कर दिया, राइट? ठीक है। और एक यूजर है FortiGate के पीछे, उसने ठीक। facebook.com पे जाना है। ठीक है जी। वो facebook.com पे गया। हम्म। अब वो TLS कनेक्शन जो बनाता है वो जी जी। FortiGate से बनाएगा, नॉट विथ Facebook। यूजर डज अच्छा। नॉट नो एनीथिंग, यूजर के ठीक है। अकॉर्डिंग वो डेस्टिनेशन पे जा रहा है, बट जी जी। FortiGate विल स्टॉप दैट TLS कनेक्शन ऑन इटसेल्फ, डिक्रिप्ट द ट्रैफिक। क्योंकि FortiGate जैसे ही स्टॉप करेगा, TLS अगर FortiGate से बना है तो FortiGate को सर्टिफिकेट ही मिल रहा है, FortiGate विल गेट एवरीथिंग। सो FortiGate विल एबल टू डिक्रिप्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग इंक्लूडिंग द पेलोड, अच्छा। राइट? अब FortiGate जब रिस्पॉन्स देगा वो किस सर्टिफिकेट से देगा? इस सर्टिफिकेट से जो हम यहाँ चूज कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, ओके। राइट? देखो ये लिखा होगा, this SSL जी। profile use full SSL inspection and users will likely see certificate warning unless the certificate is installed. अब सर्टिफिकेट्स अच्छा। पे जब बात करेंगे, हम बात करेंगे क्यों जी ऐसा हो जी रहा जी। है, जी पूरी जी, बात करेंगे हम जबरदस्त। जबरदस्त। आप ट्रस्टेड सर्ट कैसे वो चेन बनेगी, कैसे ट्रस्ट करेंगे हम, वो हम पूरा बात करेंगे। बट फॉर नाउ जी यू जी। कैन अंडरस्टैंड दिस ऑलरेडी, ओके? बिल्कुल बिल्कुल। तो फायरवॉल पॉलिसी में डू यू हैव एनीथिंग व्हिच इज, आई मीन, गिविंग यू नहीं नहीं सर जी, doubt or anything, anything फिलहाल, hard? फिलहाल जबरदस्त है सर जी, फिलहाल जबरदस्त Okay, चल रहे हैं। so I'm canceling it. Firewall जी। policy. Oh, yeah, one thing left. Flow based versus proxy based. The firewall policy in 40 it can be flow versus proxy. जी जी। Basically, flow based does not have all it provides all the security, and most importantly it is fast. अगर आप flow based choose करते हो तो fast है, fast काम करता है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। एंड proxy based में फीचर्स थोड़े से ज्यादा है,
So definitely it will provide more security features, but it can add latency sometimes, and also can sometimes your website can times out because of proxy All right. based. Okay. Because in flow based, firewall will inspect traffic as it comes and send to destination पैकेट बाय पैकेट. तो मान लो आपका एक वेबसाइट पे जा रहे हो, हर एक पैकेट आया, फायरवॉल ने इंस्पेक्ट किया और सेंड कर दिया. बट ठीक इन है. प्रॉक्सी बेस्ड, फायरवॉल विल कलेक्ट ऑल पैकेट्स. तो वो सारे कलेक्ट करेगा, पूरे के पूरे जितना भी आपका ट्रैफिक भेज रहे हो आप, सबको इकट्ठा स्कैन करेगा. अब जब सबको इकट्ठा स्कैन करेगा तो नो डाउट एक सिग्नेचर मान लो मैच होना था. मान लो फ्लो बेस्ड की बात करते हैं, तो जी कोई जी. सिग्नेचर है, सिग्नेचर मैच होने के लिए हमें 3 पैकेट या 4 पैकेट से पैटर्न समझ आता है, राइट? ठीक है. बट फ्लो बेस्ड में हम पैकेट टू पैकेट भेजते जा रहे हैं, तो हम हम्म. पैटर्न इतने अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए कई चीजों का. बट इन प्रॉक्सी बेस्ड, बिकॉज वी आर कलेक्टिंग ऑल ट्रैफिक बिफोर सेंडिंग टू द डेस्टिनेशन, तो हमने पूरा कलेक्ट किया, तो मान लो कोई पैटर्न मैच भी हो रहा है किसी नॉन वल्नरेबिलिटी से, नॉन सिग्नेचर से, वी विल बी एबल टू मैच दैट, ओके. राइट? एंड देन वी विल सेंड इट टू डेस्टिनेशन. तो ऑटोमेटिकली, डू यू गेट व्हाई इट हैव लेटेंसी? क्योंकि हाँ. हमारा ट्रैफिक हम डायरेक्टली भेज ही नहीं रहे, हम ठीक है. कलेक्ट कर रहे हैं FortiGate पे, तो लेटेंसी तो आ रही है हाँ ना हाँ हाँ, कनेक्शन में. बिल्कुल. बिल्कुल आ तो रही. देर आर सम वेबसाइट्स which do timeout because we are ठीक है. using proxy based. ठीक है. ठीक है. अगर आप चेक ठीक भी है. करोगे Wireshark capture में, you'll see latency there in the ठीक है. ठीक है. timestamps, right? So this is the difference. But proxy based has more features and more secure than flow based. Okay, ठीक है. ठीक है. but it does not mean that you always need proxy based. You can just go with flow based. But sometimes there are some features which are not available. Then users go to proxy based. ठीक है. Okay, जी जी is जी that जी. clear? ये आपको बिल्कुल clear जी. है? जबरदस्त हो ठीक है, गया. ठीक है. तो आज आपके पास हमारा कब तक का टाइम है आज? वैसे तो वीकडेज पे सर जी 1 आवर होता है कि मेरा अब कॉलेज आज शुरू हो वीकडे. जाती है ना इस टाइम पे. तो लेकिन आपको सैटरडे संडे हम 9:30 तक तो कर लेंगे आराम आई से. थिंक हम टाइम आज का कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? हाँ. लेकिन आज हमने वो जो हाँ वी अचीव द टारगेट ऑल्सो बेसिकली है ना आज का. Just I mean, yeah, we achieved the target. If you have to go, let's wrap up that. If you have 10 or 15 minutes, let's complete this as well. चले चले 10 मिनट लगा लेते हैं सर जी और लगा लेते हैं. ठीक है, बिकॉज ये और हम और भी देने वाले हैं. आई एम नॉट गोइंग टू हाँ डीप हाँ. इनटू दैट बिकॉज दिस इज ठीक है. समथिंग वी ठीक है. नो. ठीक है. So DNS, we know DNS, right? IP to जी जी name जी जी resolution. Sorry, name जी to जी IP resolution, because जी computer understand only IPs. जी जी. And DNS में, you know, recursive, iterative queries, everything. These, I think you all know that because these are deep topics, and हाँ we are हाँ not हाँ covering हाँ. that here. ठीक है. ठीक है. And DSCP, we know leasing the IPs. जी जी. So I'm not going into the topic. We are just going how FortiGate works on that. Okay. ठीक है. जबरदस्त. So FortiGate का DNS is there. ठीक है. Right now, if you जी see, जी. I'm using DNS server primary as this, secondary as this. ठीक है जी. ओके जी. एंड आप CLI की बात कर रहे थे. CLI में आप दो तरीके से काम कर सकते हो. इन न्यू फर्मवेयर देयर इज अ न्यू थिंग फॉर यूजर्स. या तो मैं CLI यहां से खोल के DNS में जाऊं, कॉन्फ़िग सिस्टम DNS show, right? Then I can make some changes, I can do whatever I want to do. Or there is an option here. Can you see this? Edit in CLI. जी 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 जी. बिल्कुल If I click जबरदस्त. here, automatically it will open that. See, ठीक है. you don't ठीक need है. to know all commands. ठीक है. There are multiple things which you can do from here directly. सर जी, एक Edit in स्टूपिड CLI क्वेश्चन, this. एक स्टूपिड क्वेश्चन हाँ जी, पूछूं. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. सर जी, ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये कॉन्फ़िग सिस्टम की है, सिस्टम का है? जैसे इंटरफेसेस वगैरह सिस्टम के अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं? ये ये इसका कोई थंब रूल नहीं है ऑनेस्टली. अच्छा. ओके ओके. ये मतलब दिस इज नॉट ऑन एनी स्पेसिफिक थिंग. ये डिपेंड करता है, जैसे फायरवॉल पॉलिसी कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी हो जाता है, हाँ हाँ DNS हाँ. कॉन्फ़िग सिस्टम हो जाता है. दीज आर द स्ट्रक्चर दे हैव मेड, ठीक है. डेवलपर्स, ओके राइट? ओके So ओके. this is not fixed, right? So ठीक है. that's something you can just check from here if you are having any doubt. And अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो बहुत इजी सर्च करना है आपको. ओके. अगर देखना है हाउ टू कॉन्फ़िगर, सिंपल ये लिखना है कुछ भी, DNS of FortiGate in CLI. जैसे ही आप लिखोगे, FortiGate का डेटाबेस बहुत स्ट्रांग है, तो आपको साथ के साथ यहाँ दिख जाएगा. देखो,
पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा कि हाउ कैन यू डू दैट, CLI में आप जबरदस्त। क्या कर सकते हो, GUI में ओह आप क्या कर सकते जबरदस्त। हो, राइट। जबरदस्त, ओके, नोटेड। अभी के लिए हम यहाँ बात करते हैं तो प्राइमरी ठीक है। एंड सेकेंडरी। अगर प्राइमरी आपका अनरीचेबल है तो ऑब्वियसली फॉर रिडंडेंसी पर्पस वी आर हैविंग सेकेंडरी, राइट। ठीक है। ठीक है। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ दिस लोकल डोमेन नेम? कई बार आपकी डोमेन, आप डोमेन नेम अपेंड करके नाम के साथ भेज रहे हो, तो लेट अस सपोज आपकी एक डोमेन है tejas.com, right? ठीक है। Something like that. जी And जी। you are sending names without the domain name. ठीक है। You want FortiGate to append that and you want FortiGate to resolve that. So ठीक है। for that आप ये यूज करोगे, ये मेरी इंटरनल डोमेन है, ठीक राइट। है। तो अगर मैं किसी डोमेन पे जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ DNS पे जाए विद दिस डोमेन ऑटोमेटिकली लगा के इन द DNS क्वेरी, तो हम इसके लिए लोकल डोमेन यूज करेंगे, ठीक है जी। ठीक है। हम्म। अब DNS प्रोटोकॉल राइट नाउ हम देखें, आप देखोगे HTTP DNS बाय डिफॉल्ट अगर आप देखो UDP 53 होता है, इट्स अ जी क्लियर जी। टेक्स्ट, देयर इज जी नो जी। सिक्योरिटी। ठीक है। तो समटाइम्स वी नीड सिक्योरिटी, वी डोंट वांट एनीवन इन द मिडल टू इंटरसेप्ट आवर DNS क्वेरीज कि हम ठीक है कहाँ जी। जा रहे हैं। ठीक ड्यूरिंग है। दैट मोमेंट हम या तो HTTPS लगा सकते हैं या TLS लगा सकते हैं। TLS भी सिमिलर, यू हैव टू प्रोवाइड सर्टिफिकेट, ठीक है जी। राइट। बट अगेन इफ यू डू दैट इट विल बिकम TCP फर्स्ट थिंग, बिकॉज ओके। TLS आपका TCP प्रोसेस क्या होती है, पहले TCP कनेक्शन बनता है फिर TLS बिल्कुल। बनता है। ठीक है जी। अगर आप देखोगे भी TCP and then there will be certificate exchange, so definitely you will be expecting latency। तो आप ठीक है जी। देखोगे कि आपकी DNS जो क्वेरीज होंगी उनमें थोड़ी सी लेटेंसी आएंगी, आपकी वेबसाइट थोड़ा टाइम ले सकती है खुलने के लिए भी। ठीक तो है जी। इसलिए यूजुअली बाय डिफॉल्ट हम DNS UDP पे रहते हैं बिकॉज UDP इज फास्ट, राइट। ठीक है जी। देन IPv6 फॉर नाउ, I mean if you require we can have IPv6 DNS server. हम्म। Then dynamic DNS, this is important thing, DDNS. So dynamic DNS, do you know about that? नहीं सर जी। Okay, ji, koi na. Let's discuss. It will just take 2 minutes. So DDNS basically means sometimes nowadays basically rather than using a WAN IP, because WAN IP we can get from DSCP, agree? जी जी। So let us suppose मेरे पास एक ISP राउटर है और मेरे उसके पीछे एक FortiGate लगा हुआ है। FortiGate पे ये जो इंटरफेस है WAN इंटरफेस, आई एम टेकिंग IP यूजिंग DSCP। जी जी। ओके। और राइट नाउ मान लो ये ISP राउटर मेरे को एक IP प्रोवाइड कर रहा है XYZ, लेट अस सपोज, राइट। ठीक है। एंड मेरे यूजर्स जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं XYZ IP है और भेज पा रहे हैं, अभी तक तो कोई इशू नहीं है। नहीं। मान लो मैंने एक IPsec टनल भी बना रखी है एंड अदर एंड इज एनी डिवाइस, लेट अस सपोज FortiGate ही है। ठीक है। जब हम IPsec टनल बनाते हैं तो हम रिमोट गेटवे देते हैं, रिमोट गेटवे मींस रिमोट पब्लिक IP। सो ठीक है यहाँ जी। पे मैंने IPsec पे ये वाली IP दे रखी होगी XYZ, एग्री। ठीक है जी। जी जी। अब मान लो ISP, दिस ISP हम्म। चेंज द IP, हाँ। वो थोड़ी देर बाद XYZ की जगह ABC दे दे, हाँ ठीक है। उससे क्या नुकसान होने वाला है? वो इंटरनेट आईपी तो एड्रेस। हमारा चलता रहेगा, हाँ। इंटरनेट तो हमारा चलेगा बिकॉज वी हैव अ डिफॉल्ट राउट। VPN डाउन हो जाएगा, यू राइट। बट यहाँ से VPN डाउन हो जाएगा, राइट, बिकॉज वी आर हैविंग XYZ हम्म। which is a no, which is not good, right, for the traffic. जी It will जी। make our site down sometimes. So इसके लिए हमने डायनेमिक DDNS यूज करना शुरू किया। डायनेमिक DNS मतलब डायनेमिकली अपडेट होता रहे हमारा नाम, अच्छा। विच मीन्स मान लो मैंने एक नाम लिया, एक किसी क्लाउड फ्लेयर, सॉरी नॉट क्लाउड फ्लेयर, किसी कहीं से मैंने वो DDNS परचेज की एक डोमेन, राइट। ठीक है। अब मैं रेदर देन IP इस XYZ पे DDNS डाल दूंगा फॉर दिस FortiGate, ओके। वाह। और यहाँ पे FortiGate पे भी बाय डिफॉल्ट मैं DDNS यूज करूंगा, ओके। ठीक है। अब मान लो अभी इसका मतलब क्या हुआ, FortiGate को एक नाम मिल गया, मान लो abc.fortinet.com, मैंने ये वैल्यू डाली है, राइट, यहाँ पे ठीक है रिमोट गेटवे में। जी। अब ISP क्या कर रही है, abc.com को अभी रिजोल्व कर रही है मान लो 1.2.3.4 IP में। ठीक है जी। Suddenly ISP change the IP to 3.4.5.6, जी जी। that will automatically will be updated on that name वाह। तो ऐसे बजाय because आईपी के हम फिर डीडीएनएस यूज right, करना पड़ा। ओके ठीक right, है। ओके and ओके। because of that हमारी IPsec टनल जो है सारा ट्रैफिक, नॉट ओनली IPsec टनल, विप यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो अप ही रहेगा क्योंकि ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है वो IP। तो हाँ आपने यहाँ समझ गया। DDNS यूज किया तो ऑल द टाइम यू नो द पब्लिक IP, जी जी जी। करेक्ट, यू गॉट दैट जबरदस्त। DDNS, राइट। जी मिल गया, माम चल गया।
तो यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप देखो अभी मेरे को आईपी मिल रही है, मान लो चेंज हो जाती है, तो मेरे मैं हर जगह अपनी मान लो लेट अस सपोज मैं आपको भी एक्सेस देना चाहता हूँ इसका, तो मैं आपको जी। सिर्फ ये नाम बताऊंगा, चाहे हाँ आईपी कुछ हाँ भी होती रहे, यू डोंट हैव बिल्कुल। टू वरी अबाउट दैट, ठीक है ठीक है automatically it will be resolved, right? ठीक है। Okay, so this is about DNS, how DNS जी works on FortiGate, जी जी। and what to do on FortiGate. Sometimes you are having latency, sometimes it's unreachable. Then first thing I will suggest you to go to UDP. अच्छा। Just disable TLS because it can cause latency and unreachable as well. अगर आगे ठीक है सब कुछ दिक्कत हो रही है सर्टिफिकेट एक्सचेंज में, right? ठीक है That's ठीक the है first thing. ठीक है। And FortiGate itself can act as a DNS server. ओके What ओके। does it mean now? अब कई बार क्या होता है आपके पास, आप FortiGate पे ही DNS भेजना चाहते हो अपना, rather than sending to 8888, there are times when you want to send traffic. Let us suppose internal one and there are some users behind there. आपने जब DNS डाला है इन मशीन्स पे, वो FortiGate की आईपी ही डाली है अच्छा। rather than 8888. ठीक तो है उस केस में क्या होगा, FortiGate will act as a DNS server in recursive way. वो आप चेंज कर सकते हो। मतलब इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे कोई डोमेन दे देते हैं, मान लो मैं कोई डोमेन है हमारी, मान लो हमारी कोई डोमेन है जो हम रिजोल्व करवाना चाहते हैं, तो FortiGate पे हम एंट्रीज डाल देंगे उस डोमेन की, और FortiGate ही रिप्लाई देगा। ठीक अगर है। FortiGate पे इंफॉर्मेशन नहीं है तो रिकर्सिव क्वेरी है, रिकर्सिव मींस FortiGate विल सेंड इट टू आवर ओरिजिनल पब्लिक DNS। समझ गया। ओके ठीक है, ओके ये ओके इसमें ये चीज है। ओके। और दिस इज अबाउट DNS। यहाँ पे एक और चीज मेरे को आपको बता दें, हाँ ये इंटरफेस में अगर मैं जाता हूँ, जी मान लो मैं एक इंटरफेस है जिसे मैंने वो भी बना रखा है, टेस्ट डॉट, मान लो मैंने एक इंटरफेस है एंड आई एम लीजिंग आउट माई DHCP थ्रू दैट इंटरफेस ओनली। ठीक है जी ओके, मतलब कि FortiGate इज एक्टिंग एज DHCP, जी। राइट? तो उस केस में आपके पास चॉइसेस होती हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं इसको DHCP बनाऊंगा, ऑब्वियसली DHCP सर्वर ही DNS देता है, एग्री? जी जी तो बिल्कुल। देखो यहाँ पे चॉइस क्या है, सेम एज सिस्टम DNS। इसका मतलब क्या है कि जो यूजर्स को जब आईपी देगा FortiGate, तो सिस्टम DNS जो कि यहाँ पे DNS था, जो हमारा पब्लिक DNS है, वो ही मिलेगा यूजर्स को। अच्छा। यानी कि यूजर्स विल गेट 8.8.8.8 और जो भी ठीक मैंने है यहाँ कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है। और यू कैन क्लिक ऑन सेम एज इंटरफेस आईपी, जो मैंने हाँ अभी आपसे बात की थी, कि ठीक है इंटरफेस ही हमारा DNS करेगा। तब आपको DNS जबरदस्त सर्वर बनाना पड़ेगा। जबरदस्त। और समटाइम्स आपके पास खुद का DNS सर्वर होता है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्राइवेट नेम्स रिजोल्व करवाने हैं, तो आपके जी जी DNS सर्वर होते हैं। तो आप जी। स्पेसिफाई कर सकते हो, स्पेसिफाई करके वो आईपी दे सकते हो। मान लो 10.1.1.1 आपका एक DNS सर्वर है, ठीक है तो जी। आप वो आईपी दोगे, तब जब FortiGate DHCP रीच करेगा तो 10.1.1.1 विल बी DNS सर्वर ठीक है FortiGate विल गिव टू द यूजर्स, ताकि ठीक उनको है वो मिले और वो क्वेरीज रिजोल्व कर पाए। बाकी आपके DNS सर्वर पे आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन करी है, दैट इज समथिंग एल्स, बट FortiGate विल सेंड द DNS क्वेरी टू दिस, आई मीन यूजर्स विल गेट दिस DNS, हम्म, राइट? DNS इज जबरदस्त। क्लियर। हाँ तो लास्ट टॉपिक आज का DHCP। DHCP ठीक। अभी हम जो कर रहे हैं, दैट इज द सेम थिंग, देयर इज नथिंग ओके समझ गया। एल्स। जैसे ही हम ठीक। इनेबल कर रहे हैं, दैट्स DHCP एंड FortiGate विल एक्ट एज DHCP। एक्सीलेंट हो गया सर जी। एंड इसमें ही जस्ट फॉर वन मोर मिनट, DHCP रिले, डू यू नो अबाउट दैट? अगर अगर डीएससीपी किसी और सबनेट में हो डीएससीपी राइट, सर्वर। राइट। तो उस केस में अच्छा। FortiGate पे हम DHCP रिले भी यूज कर सकते हैं। एक इंटरफेस FortiGate में DHCP रिले भी एक्ट करता है, जैसे मान लो ये इंटरफेस है। ओके। सर डीएनएस वाले में एक जो डीएससीपी में जाते हैं एक सेम एज इंटरफेस है दैट इज डीएनएस राइट। वो DNS था, DHCP में DNS, क्योंकि जब हम DHCP में देते हैं तो वी डोंट, वी वांट ओनली लीज आउट आईपी। हम आईपी के साथ DNS भी देते हैं, समझ गया समझ गया। DHCP ऑप्शंस भी देते हैं, मल्टीपल चीजें देते हैं, राइट? तो वो ठीक है चीजों के लिए होता। ठीक है मान ठीक लो है। दिस इज द लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम आज का रैप अप कर देंगे। ठीक बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये डीएससीपी के अंदर जो था हाँ। इसके अंदर आप गए, हाँ सेम एज इंटरफेस आई सॉरी। नॉट हियर, नॉट हियर। इस इंटरफेस में प्रॉब्ली रिले करने दे रहा, बट आपके पास जैसे ही आप करोगे DHCP रिले का ऑप्शन आएगा, लेट मी चेक हियर। हाँ ये रहा, मिले। ठीक है? तो ठीक है rather than making it DHCP सर्वर, you can make it relay। जैसे ही आप रिले करोगे, तो आपका अगर मान लो इस VLAN से अलग VLAN में अलग सबनेट में DHCP सर्वर है, उसकी आईपी डालोगे, और यूजर्स इस VLAN के बिहाइंड है, तो ठीक है। यूजर्स विल कम डिस्कवर, उन्होंने ब्रॉडकास्ट भेजा, वो इस इंटरफेस पे आएगा, बिकॉज हाँ इट इज अ रिले।
it will send that discover unicast to the DHCP server. समझ गया. ब्रॉडकास्ट टू यूनिकास्ट. वो Okay. रिले की प्रोसेस आपको आती होगी कि ठीक है, हमारा ठीक है, ओरिजिनल यूनिकास्ट चलेगा, राइट? बट ठीक दिस है. इज हाउ रिले कैन बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन FortiGate. ओके, Okay. जबरदस्त हो so गया. let's wrap up for the today's session. Let me know if you have any doubt. जबरदस्त सर जी, मजा आ गया. चलो बढ़िया. तो फिर हम कल मिलते हैं आपको सेम टाइम पे, एंड विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक्स. ओके, एंड विल स्टार्ट जबरदस्त. डिस्कसिंग ऑन द लैब एज वेल. वेरी गुड. बहुत शुक्रिया सर ओके, जी. खुश नो रहे. वरीज. टेक केयर. बाय बाय सर जी. बाय जी. Bye-bye.